Assalamu alaikum. Dear students, welcome. I am Fakhr Zaman. In today's lecture, we will discuss about unit number 1, an overview of communication. Course code 8415. In this unit, we will discuss 5 topics: concepts of communication, communication process, barriers in communication, types of communication, and the most important, 7 C's of effective communication. Dear students, first of all, I'm going to talk about the concepts of communication. First, we should know what is communication, why we use communication, how important is communication, word communications, history, meanings, definitions, and purposes. The term communication derived from the Latin word communicare, which means to share. For example, sharing the ideas, concepts, feelings, and emotions. Literally, communication means to inform, to tell, to show, or to spread information. Other meanings of communication are contact, dealings, relations, connection, correspondence, dialogue, conversation, message, statement, announcement, report, bulletin, and letter. If we talk about the meanings of communication in Urdu, तो हमें उर्दू में भी कम्युनिकेशन के बहुत सारे मायने देखने को मिलते हैं, जैसा कि तबादला ख्याल, राब्ता, मवासलात, पैगाम रसानी, खतो किताबत, ताल्लुक, देना या पहुंचाना, या फिर आमदोरफ्त। अजीज तलबा तलबात, ये थे वर्ड कम्युनिकेशन की मीनिंग्स। अब हम बढ़ते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस की जानिब। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास है two-way process of reaching mutual understanding, in which participants not only exchange information, news, ideas, and feelings, but also create and share meanings. In general, communication is a means of connecting peoples or places. According to this definition, we can say communication is a process or bridge which connecting peoples or places. We have two other definitions. First is communication is interchange of thoughts, opinions, or information by speech, writing, or signs. This definition has been written by Robert Anderson. According to Alan Lewis, communication is the sum of the entire things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It involves a systematic and continuous process of telling, listening, and understanding. According to these definitions, we can say the process you use to send and interpret messages so that they are understood is called communication. What is business communication? In the business environment, this process is called business communication. Dear students, research indicates that adults spend about 2/3 of each day communicating, responding to friends, maintaining relationships with co-workers and supervisors, interpreting messages, and persuading customers are always people interact. Studies also indicate that managers spend more than 50% of their time attending meetings, making telephone calls, writing, and listening. Communication skills include the ability to use
language accurately, use proper grammar, choose words precisely, and spell correctly. They also include the ability to speak, teach, counsel, debate, and listen. Dear students, whether you realize it or not, your success in life is dependent upon your communication skills. अजीज तलबा व तलबात, यहाँ हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से कि कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारी कामयाबी के साथ क्या ताल्लुक है। यकीनन बहुत गहरा ताल्लुक है। कामयाबी का दारोमदार कम्युनिकेशन स्किल्स पर ही है। जितने स्ट्रॉन्ग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उतने ही आप कामयाब तरीन इंसान कहलाएंगे। अजीज साथियों, आप कभी गौर करें तो हर जगह आपका कम्युनिकेशन से ताल्लुक पड़ता ही रहता है। यानी आप घर में हैं, फैमिली के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, जहां आप जॉब करते हैं वहां पर हैं, कहीं पर भी हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कहीं पर भी आप हों, तो कम्युनिकेशन का वास्ता आपसे लाजमी पड़ता ही रहता है। तो जब हमने कम्युनिकेशन रोज करनी ही है, तो क्यों ना हम एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बनाएं, हम माहिर हो जाएं कम्युनिकेशन में, हमें महारत हासिल हो अपनी कम्युनिकेशन पर। बाज़ औक़ात आप जिंदगी में कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे थोड़ी देर कन्वर्सेशन करते हैं, फिर मुद्दों बाद अगर आप उनसे मुलाकात करते हैं तो वो आपको याद रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत। तो इसका ये मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन स्किल्स का काफ़ी गहरा असर पड़ता है कि कोई बंदा भी आपके दिमाग पर अपनी छाप छोड़ सकता है थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा अगर हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बात करें तो आपकी कस्टमर्स के साथ डीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। आप अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ भी थ्रू कम्युनिकेशन ही राब्ता रखते हैं। अक्सर बात आपको ये सुनने को मिलता है कि ये एम्प्लॉय बहुत काबिल है। अब काबिलियत का मयार किस चीज़ पर रखा जाता है? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन मौसर तरीके से वो करता है, इसलिए उसे काबिल समझा जाता है। इसी तरह वो कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरीके से डील करता है, तो यकीनन उसको प्रमोशंस भी मिलती हैं, अप्रिसिएशंस भी मिलती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही बनती है। जितनी एक्सीलेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उतनी ही आप कामयाबियां हासिल करते जाएंगे। अजीज साथियों, हम यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर बात करें कि आप किसी कंपनी की सर्विसेज यूज कर रहे हैं और सर्विसेज में कोई इशू आ रहा है और आप बहुत गुस्से में हैं और आप हेल्पलाइन पर कॉल मिलाते हैं, तो दो तरह के रिप्रेजेंटेटिव से आपका वास्ता पड़ता है। एक वो जो आपके गुस्से को मजीद बढ़ा देगा, एक वो जो आपके गुस्से को ख़त्म कर देगा और बल्कि ऐसा आपको डील करेगा कि जब आप कॉल का इख्तिताम करेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और इत्मीनान होगा। यानी कि वो थ्रू अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है उस रिप्रेजेंटेटिव के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप किसी भी कंपनी के आउटलेट पर विजिट करें और वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको निहायत अच्छी तरह से डील करता है, तो यकीनन आप जब दोबारा वहाँ जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसी रिप्रेजेंटेटिव के पास ही जाएं। क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, उसने आपको इतनी अच्छी तरह से डील किया कि आप दोबारा, आपका दिल चाह रहा है कि आप दोबारा वहाँ जाएं। तो ये एक सक्सेस है एक एम्प्लॉय के लिए। इसके अलावा इर्द गिर्द जहाँ पर भी आप मौजूद हों, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत लाजमी है। आपने क्या मैसेज करना है, आपने क्या बोलना है, आपने किस तरह से अपना मैसेज डिलीवर करना है, कम अल्फाज में आप किस तरह से अगले तक अपनी बात पहुंचाते हैं और किस मौसर अंदाज से पहुंचाते हैं, ये डिपेंड करता है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को बंदा बढ़ा कैसे सकता है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, स्पेशली 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। फिल वक्त हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या किरदार है हमारी ज़िंदगी में, हमारी कामयाबी में। तो यकीनन हमारी कामयाबी में निहायत अहम किरदार है
कम्युनिकेशन स्किल्स का। अजीज तलबा और तलबात, अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से आप कोई मैसेज कुछ और देना चाह रहे होते हैं जो कि कुछ और ही बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हों, चाहे आप दोस्तों के साथ हों, आप फैमिली में हों, जहाँ पर भी हों, आप डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं तो यकीनन इंसान कामयाबी से बहुत दूर आता है। उसकी वजह यह है कि आप प्रॉपरली मैसेज कन्वे ही नहीं कर पाते। अब हम अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल लें कि आप कहीं ऑफिस में हैं और आपने किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देनी है और आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आप सही तरह से आपके अल्फाज का चुनाव ही ठीक ना हो, बहुत सारे एरर्स हों और आप सही तरह से प्रेजेंट ना कर सकें, तो यकीनन आपकी उस एप्रिसिएशन जो कि बन सकती है आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, वो आपको पीछे धकेल देती है, कामयाबी से दूर ले जाती है। तो यकीनन कम्युनिकेशन स्किल्स का इंसान की जिंदगी में निहायत अहम रोल है। Now students, we are moving towards the next step. The purposes of communication. Dear students, why we use communication? How important is communication? Why do we communication? What's the reason behind it? We all use communication for 5 basic purposes: to establish and build goodwill, to persuade, to obtain or share information, to establish personal effectiveness, to build self-esteem. Your ability to establish and build relationships affects every aspect of your life, whether in your social, academic, or professional life. This ability determines the depth of your relationships with your friends, loved ones, family, classmates, and co-workers. Simply, good relationships result in goodwill. So here we can say we do communication because we want to establish and build goodwill. सोशल फ्रेंड्स हों आपके, या फैमिली, क्लासमेट्स हों, या टीचर्स हों, सुपरवाइजर्स हों, या फिर कोवर्कर्स हों, जब वो ये महसूस करें कि आप पर्सनली उनके लिए कितने मुखलिस हैं, तो यकीनन आपकी रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और ये आप उनको शो किस तरह करेंगे? आप उन तक ये मैसेज कैसे कन्वे करेंगे कि आप उनके लिए कितने मुखलिस हैं? यकीनन कम्युनिकेशन के थ्रू। Third is to obtain or share information. Dear students, information is one of the most valuable resources we have. You must communicate to obtain the information you need and to share the information you have. You need this valuable resource to function successfully with friends, at school and at work. यकीनन अजीज साथियों कि हमारे पास जो इल्म या इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो, वो हम कन्वर्सेशन डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही उसको हासिल कर पाते हैं। और वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो हमारे पास मौजूद हो तो वो थ्रू कम्युनिकेशन हम अगलों तक पहुंचा देते हैं। तो थ्रू कम्युनिकेशन हम इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं या शेयर करते हैं जो उनके पास मौजूद नहीं है। तो यकीनन गिव एंड टेक वाला सिस्टम है कि अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो यकीनन अगला भी आपसे इंफॉर्मेशन या नॉलेज शेयर करेगा। तो वी डू कम्युनिकेशन बिकॉज टू ऑब्टेन और शेयर information. Fourth is
to establish personal effectiveness. When you receive a message that is accurate, easy to understand, and error-free, you form a positive image of the sender. If you receive a message full of errors, you suspect that the sender is careless or thoughtless. Whether in a social, academic, or professional setting, a positive image is very important. यानी अजीज तलबा व तलबात, आप कहीं पर भी मौजूद हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हैं, कहीं पर तालीमी सरगर्मी है वहाँ पर आप मौजूद हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, हर जगह आपका एक पॉजिटिव इमेज, मुस्बत इमेज जो है वो होना निहायत अहम है। तो हम कम्युनिकेशन करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक पॉजिटिव इमेज बने। We want to do communication to establish personal effectiveness. And the last is to build self-esteem. Positive comments or reaction from others increase your self-esteem. Such positive reinforcement causes you to feel good about yourself and your chances for success. This confidence has a positive impact on your social relationships, your academic associates, and your co-workers. अजी साथियों, यकीनन आप अगर किसी से कोई फीडबैक मांगें, यानी आपने कहीं पर प्रेजेंटेशन दी या कहीं पर भी परफॉर्म किया और उस हवाले से आप किसी से फीडबैक लेते हैं और वहाँ से आपको जो रिएक्शन आता है या कमेंट्स आते हैं और वो बहुत अच्छे कमेंट्स हों, तो यकीनन पहले तो आप अच्छा फील करते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो यकीनन नेक्स्ट टाइम आप उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा अपना बेस्ट देंगे, जिससे आपके कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो यकीनन पॉजिटिव कमेंट्स और रिएक्शंस का इंसानी ज़िंदगी पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी तरह अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स जो आपको हर्ट करते हैं या आपको बहुत बुरे लगते हैं, तो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन कर जाता है और आप कभी फिर अपना बेस्ट नहीं दे पाते और आप अच्छा महसूस नहीं करते। लिहाजा इन कमेंट्स का आपकी ज़िंदगी पर यकीनन असर पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप आपने किस तरह से बिल्ड किया हुआ है। In summary, you spend a great deal of time communicating. How you communicate critically impacts your social, academic, and professional lives. So, dear students, simply we can say we all use communication for five basic purposes. Five purposes: to establish and build goodwill, to persuade, to obtain or share information, to establish personal effectiveness, to build self-esteem. अजीज तलबा और तलबात, आज के लेक्चर में बस इतना ही। In today's lecture, we talked about concepts of communication in unit number 1, an overview of communication, course code 8415. We will discuss remaining topics in part 2 and part 3 lectures. Dear students, thanks for all of you. Now we will meet in next lectures. Till then, Allah Hafiz.